Hello everyone, welcome to Grade Up. I hope all of you are doing extremely well and are in great health. So today is रक्षा बंधन, तो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। सर क्या बात कर रहे हो? आज तो छोड़ दो, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, सो थोड़ा सा आज हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये समझते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 5। सर टाइम एंड वर्क में सब कुछ पढ़ा दिया, बट देयर आर क्वेश्चन बेस्ड ऑन टीम्स जो आज हम देखेंगे आज की क्लास में कि सर टीम्स के ऊपर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। सो टाइम एंड वर्क को ही कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक, बट अभी टाइम एंड वर्क ही चलेगा। और टाइम एंड वर्क में आज क्या करने वाले, ब्रेकिंग न्यूज क्या है? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन टीम्स। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस क्लास एंड ऑल सेट। रक्षाबंधन वगैरह सेलिब्रेट करके आ चुके हो सब लोग, अब बस रेडी हो गए हो पढ़ाई करने के लिए। सो पढ़ लेते हैं फटाफट से। ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज क्या आ चुकी है कि भाई आज पढ़ाई करनी पड़ेगी। और क्या पढ़ना पड़ेगा? टाइम एंड वर्क के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर टीम्स वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या अलग है इसके अंदर में? सो टीम्स वाले क्वेश्चन के अंदर में बेसिकली क्या होगा कि मान लो 5 आदमी और 4 औरतें मिलकर काम इतने दिन में करते हैं। सेम वर्क को करने में अगर 10 मैन और 8 वुमेन हो जाएंगी तो इतने दिन लग रहे हैं। तो अगर सेम वर्क को 16 मैन और इतने वुमेन ने करना है तो कितना टाइम लगेगा? तो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो वो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वंस अगेन टू ऑल दोज हु आर ज्वाइनिंग लेट, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग देयर इज एन अनाउंसमेंट एज ऑलवेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, amazing sale is going on in Grade Up for 22nd and 23rd of August, and the coupon code is Rakhi50 because it's since it's Raksha Bandhan, so obviously Rakhi50 is going to be a code RAKHI50. So flat 50% off you are getting on Grade Up Super for CLAT, SLAT, ALET and Maharashtra CET exam, and the coupon code is Rakhi50. Clear? So partners in crime, ठीक है, to partners in success, that is brother and sister. So let's celebrate this festival of brother and sister with getting enrolled in Grade Up by getting this absolutely great super duper offer, that is flat 50% off by using this coupon code. चलिए, ये तो हो गई बात कूपन कोड की। Now let's move on to Grade Up achievers. If they can do it, you can too go do it. Prepare with Grade Up now. So these are our achievers, you can say AI rank, AIR 8, 18, 31, 50, 77, 90, 139, 147, 155, 201, 210, 260, 334, 449, 469, 483, 484 and many more and counting and counting. So these are CLAT 2021 results of Grade Up. चलिए, one more announcement, last announcement is course launched, enroll now. Course for whom? Repeaters course. What is this repeaters course, sir? This repeaters course is for all those students who are repeating. Who are repeating means who have prepared for CLAT 2021, somehow didn't get selected and now want to prepare for CLAT 2022. What are the course highlights? 200 plus live quizzes would be there, 80 plus mock tests, 150 plus sectional tests and 10,000 plus practice questions would be there. What all included? Expert guidance by NLU alumni, weekly performance tests and many more things would be there in this. So enrollment have already started. Join now before it's too late. So these are the contact numbers of our experts. If you have any query regarding the course, you can contact them. चलिए जी, तो काफी सारी अनाउंसमेंट हो गई, तो आज की क्लास पे आ जाओ सर फटाफट से। तो आज की क्लास किस बारे में है? So today's class is about teams. What team, sir? So today's class is about if we are working in a team. So teamwork not always as efficient but always more fun. Teamwork makes the dream work. So there are some quotes for you. कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे? 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। एक तो बनेंगे क्वेश्चन और वाले कि भाई 3 men और 4 women can complete a piece of work in that much days. So in how many days इतने men and women would be doing the work. एक क्वेश्चन बनेंगे एंड वाले। तो टीम 2 तरह की होती है कि भाई या तो 3 आदमी मिलके कर रहे हैं, 4 वुमेन मिलके कर रही हैं, या फिर 3 आदमी एंड 4 वुमेन मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो इतने दिन में कितना होगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे टीम वर्क में। क्वेश्चन बेस्ड ऑन और वाले भी और एंड वाले भी। ठीक है, और मींस ये भी उतने टाइम में कर रहे हैं, ये भी उतने टाइम में, एंड मींस मिलकर इतने टाइम में कर रहे हैं। लेट्स सी किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज दिस मच।
I am giving you 20 seconds to read this question. Please do read the question. Yes, everyone, please do read the question. Take 20 seconds time. Okay. Some of you must be relating with this meme, trying to study like this. सारी बुक्स खत्म. चलो, आई होप यू हैव रेड द क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन को करने का पहले नॉर्मल मेथड देखेंगे और फिर एक और यूनिक मेथड देखेंगे. क्या है नॉर्मल मेथड? पहले क्वेश्चन क्या है. 5 men और 4 women कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days. सो 5 men का जितना भी काम करते हैं उतना ही काम 4 women कर रही हैं. कैन आई से दिस कि 5 आदमी मिलकर जितना काम करते हैं उतना ही 4 women मिलकर करती हैं. सो एक आदमी जितना भी काम करता है उतना काम 4/5 women कर रही हैं. बिकॉज 5 आदमी जितना काम करते हैं या 4 women मिलके काम फिनिश करते हैं 12 days में. सो 5 आदमियों की एक टीम, या और का मतलब या फिर अगर हम 5 आदमियों की टीम नहीं ले रहे तो हम 4 औरतों की अगर टीम लेंगे, सो ईदर वी कैन टेक 5 men टीम और वी कैन टेक 4 women टीम. द वर्क वुड बी फिनिश्ड इन 12 days. दिस इज समथिंग गिवन टू अस. नाउ सो कैन आई से 5 men आर दैट मच एफिशिएंट एज 4 women. सो अगर 5 आदमी उतने एफिशिएंट है जितनी 4 women है, तो एक आदमी कितना एफिशिएंट होगा जितनी 4/5 women है. तो हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया. तो आई कैन से 1m इज इक्वल टू 4/5 w. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन विच आई हैव गॉट. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन. 2 men and 8 women will take how many days to finish the same work. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 men and 8 women को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो. तो 2 men and 8 women, हमें पता है 1 man is 4/5 women. तो 2 into 4/5 women and means plus 8 women. So how much it should be? 8/10 women plus 8 women, which is going to be, yes, sorry, 8/10 नहीं, 8/5, my mistake. Just a second. Yes, it should be 8/5. ठीक है जी. So this is 8/5 women plus 8. So we can take 5 here. So this is 8 women plus 5 8s are 40 women. So 48/5 women. तो बेसिकली क्वेश्चन इज सेइंग दिस. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 4 women, अगर 4 औरतें 12 दिन में वर्क को फिनिश कर देती हैं, 4 women कैन फिनिश द वर्क इन 12 days. So 48/5 women would be taking how many days? तो क्वेश्चन मार्क का आंसर करना है आपको और कुछ नहीं करना. सो ये कितना हो जाएगा, 4 1s are 4 2s are 12 will get cancel out. So what should be the answer? Yes, what should be the answer? This 5 will go here, so it should be question mark is equal to 5 days. So answer has to be 5 days, right? Is it clear? Should I explain once again? क्या किया यहाँ पे, आराम से समझ लेते हैं एक बार और. ठीक है, क्या किया मैंने बोला 5 men जितना काम करते हैं उतना ही 4 women काम करती हैं. ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने नहीं बोला. 5 men और 4 women कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days. तो अगर 5 आदमी या 4 औरतें मिलके जितना 12 दिन में काम फिनिश करेंगी, तो 5 आदमी इज इक्वल टू 4 women. तो 1 man इज इक्वल टू 4/5 women. सो अगर 1 man आ गया 4/5 women के बराबर, तो हमसे पूछा है 2 आदमी और 8 औरतों की टीम, 2 men and 8 women टीम will take how many days to finish the same work. तो 2 men 1 man is equal to 4/5 women. So 2 men is 2 into 4/5 women plus 8 women. So total कितनी women हो गई, 48 तो जितना काम 2 men and 8 women करेंगी उतना ही काम 48/5 women करेंगी. एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया. सो नाउ क्वेश्चन हमसे हमें पता है कि 4 women 12 days में खत्म करती हैं. तो 4 women जब 12 दिन तक काम करती है तो काम फिनिश हो जाता है. सेम वर्क को 48/5 women क्वेश्चन मार्क डेज तक करेंगी तो वर्क फिनिश हो जाएगा. तो दोनों वर्क है, दोनों को इक्वल कर दिया. तो यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 5 days, विच इज योर आंसर. इज इट क्लियर टू ऑल? दिस इज द पार्डन मी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, ग्रेट. सो ये हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड इसका. नाउ लेट अस सी वन मोर मेथड टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन. सर एक और मेथड कौन सा है? रेशियो मेथड. वो मेथड क्या कहता है, 5 men अलग अलग लिख लो और 4 women. ठीक है, 5 men अकेले काम करते हैं तो उनको 12 days लगते हैं, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. और 4 women अगर अकेले काम करती हैं तो उनको भी 12 days लगते हैं, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन.
तो 5 मैन अकेले काम करें या फिर 4 विमेन अकेले काम करें, दोनों को कितना टाइम लगेगा? 12 डेज लगेंगे फॉर श्योर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 मैन 2 मैन एंड 8 वुमेन की टीम को कितना टाइम लगेगा, यही तो क्वेश्चन है। ये पूरी टीम मिलकर काम करेगी तो इनको कितना टाइम लगेगा। तो मैं इनका इंडिविजुअल टाइम निकाल लूं सबसे पहले। इंडिविजुअल टाइम कैसे निकालूंगा? अब आप देखो, आपको पता है मैन और डेज का रेशो कैसा होता है? इनवर्स। तो अगर यहां पर 5 आदमी है और यहां पर 2 आदमी है तो इनका रेशो 5:2 है। तो अगर नंबर ऑफ मैन का रेशो इतना है तो डेज का रेशो 2:5 होगा, उल्टा हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब अगर ये 2 के डेज हैं तो ये 5 के डेज हैं, और 2 के किसके इक्वल है? 12 के, तो के आ गया 6। तो यानी 2 आदमी जब अकेले काम करते हैं तो उनको 5 × 6 5 के डेज लगेंगे, दैट इज 30 डेज लगेंगे। यस और नो? अगर 5 आदमियों को जो है 12 दिन लग रहे हैं तो 2 आदमी अकेले करेंगे तो 30 डेज लगेंगे। सेम लॉजिक यहां पे लगाओ, 4 वुमेन को अगर 12 दिन लग रहे हैं, आपने नंबर ऑफ वुमेन डबल कर दी तो टाइम हाफ हो जाएगा, तो 12 डेज की जगह पर 6 डेज लगेंगे। यस और नो? अब आपको बताना है ये टीम ए और टीम बी मिलके अगर करेंगे तो इनको मिलके कितना टाइम लगेगा। तो मैंने बताया था अगर ए अकेले इतने दिन में कर रहा है, बी अकेले इतने दिन में, दोनों मिलके कितने में करेंगे? दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। सो 30 × 6 डिवाइडेड बाय 30 + 6। तो कैन आई से आंसर इज वंस अगेन 5 days? Yes or no? So can we do this question by ratios? Of course we can do it. I will explain this logic once again. आराम से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। क्या लॉजिक है? लॉजिक ये कह रहा है 5 मैन अकेले काम करें या 4 विमेन अकेले काम करें, ठीक है। तो इनको लगते हैं 12 डेज। दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस। ये हमको पता है क्वेश्चन के अंदर में, दिस इज द डेटा विच इज गिवन टू अस। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर सेम वर्क को 2 आदमी मिलके कर रहे हैं, 2 आदमी और 8 वुमेन की टीम कर रही है, मान लो दिस इज ए टीम एंड दिस इज बी टीम, तो ये ए और बी मिलके जब कर रहे हैं तो इनको कितने दिन लगेंगे? तो पहले मैं इनके इंडिविजुअल डेज निकाल लूं कि ए टीम अकेले करेगी तो कितने दिन लगेंगे और बी टीम अकेले करेगी तो कितने दिन लगेंगे। तो पहले हमने क्या किया, इनके इंडिविजुअल डेज फाइंड आउट कर लिए। अब इंडिविजुअल डेज कैसे निकालेंगे सर? इनके इंडिविजुअल डेज निकालने के लिए हमें किसका रेशो गिवन है? नंबर ऑफ मैन का रेशो गिवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ मैन एंड डे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? आप सोचो अगर बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब उतना ही काम करना है, उसी रेट से काम करना है, उतने ही दिन में, सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ आदमी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ मैन बढ़ाओगे तो डेज टेकन कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली। ज्यादा आदमी लगाओगे सेम काम के लिए तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ मैन कम कर दोगे तो डेज बढ़ जाएंगे। और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनका मतलब इनके रेशो उल्टे होंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो अगर मैन का रेशो 5:2 है, नंबर ऑफ मैन का रेशो, तो नंबर ऑफ डेज का रेशो 2:5 हो जाएगा इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में। तो मतलब यहां पर जो डेज लग रहे हैं वो अगर 2 के हैं और वो 12 के इक्वल हैं तो के आपका आ गया 6। तो यहाँ के डेज कितने हैं? 5 के हैं सर। तो बेसिकली ये कितने हो जाएंगे? 5 × 6 विच इज 30 डेज। इसका मतलब ये वाली टीम ए अकेले काम करती है तो उसको 30 डेज लगते हैं। सिमिलरली हम टीम बी का भी अकेले काम करने के डेज निकाल लेते हैं। कैसे? डायरेक्ट निकल जाएगा, इसमें तो करने की जरूरत भी नहीं है रेशो। क्यों? क्योंकि 4 वुमेन को लग रहे हैं 12 दिन, तो 8 वुमेन डबल कर दी तो डेज हाफ हो जाएंगे। हाफ मतलब 6 डेज लगेंगे अब इनको, अगर वुमेन डबल कर दी है तो, राइट। तो अब टीम ए अकेले काम करती है तो उसे 30 डेज लग रहे हैं, टीम बी को अकेले 6 डेज। दोनों मिलके काम करेंगे जब टीम, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का एडिशन लगेंगे। तो 2 मैन एंड 8 वुमेन मिलके जब काम करेंगे, सो दे आर गोइंग टू टेक 30 × 6 डिवाइडेड बाय 30 + 6। तो कैन आई से आंसर इज वंस अगेन 5 डेज। अच्छा मेथड है ना? तो आप चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो। क्या कि 5 मैन और 4 वुमेन बराबर है, तो 1 मैन या 1 वुमेन को निकाल लो दूसरे के टर्म्स में, और फिर 2 मैन एंड 8 वुमेन की टीम में पुट कर दो, और फिर मैन इंटू डे कॉन्स्टेंट होगा, तो m1 × d1 इज इक्वल टू m2 × d2 वाला लॉजिक लगा लो कि इतने आदमी इतने दिन में कर रहे हैं तो इतने आदमी कितने दिन में करेंगे, राइट। या फिर इतनी औरतें इतने दिन में कर रही हैं तो इतनी औरतें कितने दिन में करेंगी। सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कम्स इन टीम। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको भी फटाफट से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन होता है। एक बार आप डेटा रीड कर लो। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास। फटाफट से सब लोग एक बार डेटा रीड कर लो। आई एम गिविंग यू 20-30 सेकेंड्स टू रीड द डेटा, ठीक है, देन आई विल सॉल्व इट।
आज तो वैसे आप लोग काफ़ी बिजी होंगे, हाँ, रक्षाबंधन एंड ऑल चल रहा है तो फिर भी लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो, दैट्स समथिंग वेरी वेरी नाइस यार, ग्रेट, है ना। पर पढ़ना तो पड़ता ही है यार, कुछ बढ़िया करना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी, राइट। चलो देखो सर, बताओ फटाफट से क्या क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं यार क्या क्वेश्चन है ये। देखो अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है अ टीम ऑफ 4 men एंड 3 women। सो एक टीम है, लेट अस सपोज इस टीम का नाम है टीम ए। इस टीम में कितने लोग हैं, तो अ टीम ऑफ 4 men एंड 3 women। तो अगर 4 आदमी और 3 औरतों की टीम होगी, सो दे विल फिनिश द वर्क इन 8 days। कितने दिन में काम खत्म करेंगे, 8 days में वर्क फिनिश करेंगे। तो इस टीम का नाम हम रख दिया टीम ए। अब दूसरी टीम पे चलते हैं, टीम बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेम वर्क इज डन बाय अ टीम ऑफ 2 men एंड 4 women। अगर हम 2 आदमी और 4 औरतों की टीम बनाते हैं, सो सेम काम को करने में हमें लगते हैं 10 दिन, ठीक है। सो टीम ए जिसके अंदर 4 आदमी और 3 औरतें हैं, उनको लग रहे हैं 8 दिन। टीम बी जिसके अंदर 2 आदमी और 4 औरतें, उनको लग रहे हैं 10 दिन। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अ टीम ऑफ 3 men, तो एक और सी टीम है जिसमें 3 आदमी और 1 वुमेन है, अगर इनको वर्क फिनिश करना है तो इनको कितने दिन लगेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे है पिछले क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 5 men और 4 women, तो इनका अलग अलग डेज गिवन थे। यहां पर क्या है, शुरुआत से ही एंड चल रहा है कि भाई 4 आदमी और 3 औरतों की टीम मिलकर इतने दिन में वर्क को फिनिश कर रही है। सेम काम को अगर 2 आदमी और 4 औरतें मिलकर करती हैं तो इतने दिन लगते हैं। सेम वर्क को फिनिश करने में 3 आदमी और 1 औरत को कितने दिन लगेंगे। दैट इज अ क्वेश्चन विच वी नीड टू आंसर। कैसे आंसर करेंगे, क्या करेंगे, जरा समझते हैं आराम से, ठीक है। नाउ कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। सेम सा लॉजिक जो आज तक हम टाइम एंड वर्क में करते हुए आए हैं। क्या लॉजिक है, सबसे पहले टोटल वर्क को हम कुछ अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करना इजी होगा, टोटल वर्क को हम एलसीएम मान ले। किसका एलसीएम, डेज का एलसीएम मान ले, ठीक है। सो मैं रब कर रहा हूं ये पूरा। आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा क्या करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले लेट अस सपोज टोटल वर्क इज एलसीएम ऑफ द गिवन डेज। कौन कौन से डेज गिवन है, 8 डेज गिवन है और 10 डेज। तो 8 और 10 का एलसीएम हो गया 40 यूनिट्स, ठीक है। कितना हो गया, 40 यूनिट्स। तो जो आपकी टीम ए है, इसको हम मान लेते हैं टीम ए और इसको हम मान लेते हैं टीम बी, ठीक है। सो जो आपकी टीम ए है, टीम ए ये पूरा 40 यूनिट्स वर्क कितने दिन में कर रही है, 8 डेज में कर रही है। तो अगर टीम ए पूरा 40 यूनिट्स वर्क 8 डेज में कर रही है, तो एक दिन में कितना करेगी, 40/8, दैट इज 5 यूनिट्स पर डे, दैट इज 5 यूनिट्स पर डे। तो टीम ए एक दिन में 5 यूनिट पर डे कर रही है। सिमिलरली टीम बी जिसके अंदर 2 आदमी और 4 औरतें हैं, ये वाली टीम पूरा 40 यूनिट्स वर्क 10 डेज में फिनिश कर रही है। तो एक दिन में कितना करेगी, 40/10, दैट इज 4 यूनिट्स पर डे। तो हमने दोनों टीम का एक दिन का काम निकाल लिया, राइट। तो दिस इज वन थिंग वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ लेट अस अज्यूम समथिंग। क्या अज्यूम करना है सर, लेट अस अज्यूम m इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क डन बाय 1 man इन 1 डे। एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, m यूनिट्स। सिमिलरली n इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क डन बाय, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क डन बाय 1 woman इन 1 डे। एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही है, W यूनिट्स कर लेते हैं n की जगह पर, थोड़ा सा मैन विमेन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। एक औरत एक दिन में कर रही है W यूनिट्स, ठीक है, और एक आदमी एक दिन में कर रहा है m यूनिट्स। तो अब आप देखो टीम ए के अंदर कितने आदमी थे, हाउ मेनी मैन आर देयर एंड हाउ मेनी वुमेन आर देयर। सो इन टीम ए 4 मैन आर देयर। एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करता है, तो 4 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, 4m, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। सिमिलरली एक औरत एक दिन में कर रही है W यूनिट काम, तो 3 औरतें कितना करेंगी, 3W। तो बेसिकली जो एक दिन में काम हो रहा है टीम ए के द्वारा, टीम ए जो एक दिन में काम कर रही है, द वर्क डन बाय टीम ए विच कंसिस्ट ऑफ 4 men एंड 3 women इज 4m + 3W। क्योंकि एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करता है, तो 4 आदमी एक दिन में 4m करेंगे। एक औरत एक दिन में W यूनिट काम करती है, तो 3 औरतें एक दिन में 3W करेंगी। और ये पूरी टीम ए मिलके एक दिन में कितना काम कर रही है, 5 यूनिट कर रही है। तो इनका जो एक दिन का काम है दैट इज इक्वल टू 5।
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली वी कैन मेक सेकंड इक्वेशन ऑल्सो। जिसको भी समझ में नहीं आया वो सेकंड इक्वेशन देखो। सेकंड इक्वेशन किसके बारे में होगी? टीम बी के बारे में। टीम बी कंसिस्ट ऑफ 2 men एंड 4 women। अब हमें पता है एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करता है, तो 2 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? 2m यूनिट्स, प्लस एक वुमेन एक दिन में w यूनिट करती है, तो 4 women एक दिन में कितना करेगी? 4w। ये मिला के काम हो गया टीम बी का एक दिन का, एंड दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। करेक्ट है? तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्लियरली ये पता हो कि आपने m और w क्या माना है। m is the number of unit of work done by 1 man in 1 day. W is the number of unit of work done by 1 woman in 1 day. I hope it is clear. Now solve these equation 2 unknown, 2 equation 2 unknown. Second equation को 2 से multiply कर दो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज आ जाएगी, 4 men प्लस 3 women इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4 men प्लस 8 women इज इक्वल टू 8। माइनस कर दो, दिस विल गेट कैंसल आउट, तो 5 women इज इक्वल टू 3। सो 1 woman इज इक्वल टू 3/5। यानी एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही है? 3/5 यूनिट्स काम कर रही है। ठीक है, ये दोनों माइनस आएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। क्लियर? अब ये वैल्यू पुट कर दो कहीं भी, पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में, तो दिस विल बिकम व्हाट? 4m प्लस 3 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5। सो 4m प्लस 9/5 इज इक्वल टू 5। इसको उधर ले जाओ, तो 4m इज इक्वल टू 5 माइनस 9/5 विच इज हाउ मच? 4 men इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज 16, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू आ गया आपका 4/5। इसका मतलब एक आदमी एक दिन में कर रहा है 4/5 यूनिट्स काम, और एक औरत एक दिन में कर रही है 3/5 यूनिट्स वर्क। जिसको भी समझ में नहीं आया मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि टीम सी, इसको हम मान लेते हैं टीम सी, टीम सी कितने दिन में वर्क फिनिश करेगी? अब आप बताओ टीम सी एक दिन में कितना काम करेगी? तो टीम सी एक दिन में, टीम सी कंसिस्ट ऑफ 3 men एंड 1 woman, राइट? सो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 4/5। तो 3 आदमी कितना करेंगे? 3 इंटू 4/5, प्लस एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही है? 3/5। तो एक ही औरत है यहाँ पे, तो बेसिकली 12/5 प्लस 3/5 विल बिकम 15/5, दैट इज 3। इसका मतलब ये पूरी टीम सी एक दिन में कितना काम कर रही है? 3 यूनिट्स पर डे। यस और नो? आर यू गेटिंग दिस लॉजिक? ये वाली टीम कितना कर रही है? 3 यूनिट्स पर डे, राइट? समझ में आ रहा है सबको? अरे एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। सो क्या किया है हमने, आराम से फिर से समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहां पर ये हो रहा है कि जो ए टीम है वो 40/8 हमने करके निकाल लिया, तो यहां से एम और डब्ल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हमें सी टीम देखना है। सी टीम में 3 men है और 1 woman है। तो हमें पता है कि एक आदमी कितना काम कर रहा है? एक आदमी कर रहा है 4/5, तो 3 आदमी करेंगे 12/5, और एक औरत कितना कर रही है? 3/5, तो 3/5। तो 12/5 प्लस 3/5 इज 15/5, दैट इज 3 यूनिट्स पर डे। सो अगर 3 यूनिट्स पर डे कर रही है टीम सी, तो पूरा काम कंप्लीट करने में टीम सी को कितना टाइम लगेगा? जल्दी से बताओ, पूरा वर्क फिनिश करने में टीम सी को कितना टाइम लगेगा? यस एवरीवन, 40/3 ना, तो 40/3 डेज लग जाएंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। फिर से समझाता हूं क्या किया पूरे क्वेश्चन के अंदर में, आराम से समझिएगा। जिसको भी समझ में नहीं आया है बहुत ही आराम से समझिएगा। क्या करना है? सबसे पहले हमने कहा कि लेट अस सपोज टोटल वर्क इज एलसीएम ऑफ 8 and 10, दैट इज 40 यूनिट्स। ठीक है, ए पूरा 40 यूनिट्स काम, ए टीम पूरा 40 यूनिट्स काम कर रही है कितने दिन में? यस 8 डेज में। तो ए टीम अगर 8 डेज में फिनिश कर रही है तो एक दिन में कितना कर रही है? 40/8, दैट इज 5 यूनिट्स। बी टीम पूरा 40 यूनिट काम कर रही है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगी? 40/10, दैट इज 4 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब हमने m मान लिया इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क डन बाय 1 man इन 1 day, एंड w मान लिया नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क डन बाय 1 woman इन 1 day। तो अगर एक आदमी एक दिन में m यूनिट्स काम करता है और एक औरत एक दिन में w यूनिट्स काम करती है, तो पहली टीम A जिसमें 4 आदमी है, तो वो कितना काम करेंगे? 4m करेंगे। ऐसे ही जो 3 women है वो कितना काम करेंगी? 3w, और मिला के 5 यूनिट काम हो रहा है। दूसरी टीम के अंदर 2 आदमी है, मिलके कितना करेंगे? 2m, और 4 औरतें मिलके कितना करेंगी? 4w, मिला के काम कितना हो रहा है? 4 यूनिट। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं।
वेरी गुड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m और w की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करना आपको आता है। तो बेसिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4m प्लस 3w इज 5, सो 4m प्लस 8w इज इक्वल टू 8, 4m प्लस 8w इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 2 4 जा 8 एंड 4 2 जा सॉरी हैव आई डन समथिंग मिस्टेक, एक सेकेंड, हाँ सही तो है, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ठीक है, और 4 2 जा 8 वंस अगेन, तो बस डबल कर दिया इक्वेशन का और कुछ नहीं करा। 2 का डबल 4, 4 का डबल 2 8 और 4 का डबल 8। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 5 वुमेन और ये आ गया 8 माइनस 5 इज 3। सो एक औरत एक दिन में 3/5 यूनिट काम कर रही है। कहीं भी पुट कर दो पहली या दूसरी इक्वेशन में, आपको m निकल के आ जाएगा। तो 4m प्लस 3 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5, तो 4m प्लस 9/5 इज 5, तो 4m इज इक्वल टू 5 माइनस 9/5 16/4, दैट इज एक आदमी एक दिन में 4/5 यूनिट काम कर रहा है। अब जो सी टीम है उसमें 3 आदमी और एक औरत है, तो एक आदमी एक दिन में कर रहा है 4/5, ठीक है, और एक औरत एक दिन में कर रही है 3/5। तो 3 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? 3 इंटू 4/5, और एक औरत एक दिन में कितना करेगी? 3/5। तो मिलके ये एक दिन में कितना करेंगे? 12/5 प्लस 3/5, दैट इज गोइंग टू बी 15/5। तो यानी कि 3 यूनिट्स करेंगे एक दिन में, तो कितने दिन में वर्क फिनिश हो जाएगा? 40 यूनिट पूरा 40/3 डेज में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। हाँ जी, समझ में आ रहा है सबको? एक सेकेंड, अरे ये क्या हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, नाउ इट्स फाइन, ओके। सो आई एम नाउ गिविंग यू वन क्वेश्चन फॉर द होमवर्क। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 16 men and 12 women working together take 108 days to finish the work. Same work if done by 8 men and 16 women will going to take 135 days. तो 18 मैन एंड 21 वुमेन की टीम कितने दिन में ये वर्क फिनिश करेगी? सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। आप लोग एक बार होमवर्क में ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है वेरी गुड, नहीं होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेम लॉजिक, टोटल वर्क को एलसीएम मान लेंगे इस दोनों का, ठीक है, फिर ए टीम इसको मान लेंगे, बी टीम इसको मान लेंगे और सी टीम इसको मान लेंगे। तो ए और बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। उसके बाद एम मान लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे। डब्ल्यू मान लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे। तो फिर वहां से सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन दो अननोन, यहाँ पे पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया और आप लोग इजीली कर लोगे। नाउ so this is something CLAT का बैच we have launched, CLAT 2023 का बैच has been launched. Course highlights are 400 plus live classes, 80 plus mock tests, 150 plus sectional tests, 10,000 plus practice question, expert guidance by NLU alumni, full coverage of current affairs and reasoning. Join before it's too late. ठीक है, so these are our expert. I hope you know most of them. That is Devajyoti sir, Nivedita ma'am, Abhimanyu sir, Surjeet sir, Krishnendu sir, Alpa ma'am, Vinod sir, Ashutosh sir, me myself, Salik sir and Rabia ma'am. So all these are our grade up expert. You know all of them almost. So thank you so much. That's come to the end of today's class. आज की क्लास के एकदम एंड पे आ गए हैं हम। आई होप आप लोगों को टीम वाले क्वेश्चन में मजा आया होगा, समझ में आया होगा और आप सभी लोग रक्षाबंधन भी इंजॉय कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट और फिर मिलते हैं अगले सेशंस में ऐसे ही एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।